to chemistry class. This is our next lecture. In previous lecture, we already studied the electronic configuration of element, that is from hydrogen to sodium. Now we are going to study the electronic configuration of element, that is sodium, whose atomic number is 11. And according to above principle, we fill electron in a increasing order of energy. So that first we fill the electron in 1s orbital, 1s2, then second orbital 2s2. Capacity of s orbital is 2, so that it carries the 2 electron. So 1s2, 2s2, and then electron fill into the 2p orbital whose capacity is 6, so it consists 6 electron, 1s2, 2s2, 2p6, and it's total 10 electrons. Now 1 electron is remaining. That 1 electron goes into the third shell, that is 3s orbital. So the electronic configuration of sodium is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. Now इसके पहले के लेक्चर में हमने कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किया था, दैट इज कॉल्ड द कंडेंस नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट. ये हमने स्टडी किया था. तो उसके लिए हमें इस एलिमेंट का नियरेस्ट नोबल गैस कंसिडर करना पड़ेगा. एंड नियरेस्ट नोबल गैस जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 and 2p6. दैट मीन्स टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज नथिंग बट द noble gas element, that is neon, whose atomic number is 10. So we are writing the neon in square bracket. That means it contains a 10 electron. Okay, and the remaining orbital is 3s1. So we write this 3s orbital next to the square bracket of neon. Now next element is the magnesium, whose atomic number 12. So this configuration is, again we have to repeat this same, 1s2, second orbital 2s2, then 2p6, and one more electron goes into the 3s orbital. In sodium, it carries a 1 electron. Now it have a capacity of 2 electrons, so that one another electron goes into the 3s orbital, so it contains 2 electrons. Now this 3s orbital is completely filled. So if we are add 1 electron extra, so we have to take the next orbital, that is 3p orbital. So electronic configuration of magnesium is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2. Again we write in condensed form. So we have to write the noble gas element, that is neon, in a square bracket, and next to neon the remaining configuration, that is 3s2, वो हमें लिखना है. That is second element. Now third element जो है, it is aluminium, whose atomic number is 13, and electronic configuration 1s2. again हमें continue करना है, 2s2, 2p6, then 3s2. यहाँ तक हमने कंटिन्यू किया था मैग्नीशियम में, बट यहाँ पे 3s ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया. एस की जो कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है. इसका मतलब इसके बाद अगर हमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है थर्ड शेल में, तो हमें नेक्स्ट ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा, दैट इज अ 3p. ठीक है, और इसमें 3p में 3 सब ऑर्बिटल्स है, दैट इज 3px, 3py and 3pz, and we have only 1 electron remaining, so 1 electron goes into the 3px1 and 3py 0 and 3pz 0. now इसका अगर कंडेंस फॉर्म लिखना है तो अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में नियॉन आएगा, क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस तो नियॉन है. इट कंटेन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, सो रिमेनिंग इज 3 इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे आएगा 3s2 and 3p1. so we don't have to write the 3px, 3py and 3pz. so this configuration is neon, 3s2 and 3p1. now another element, it's a silicon, whose atomic number is 14. that is silicon, whose atomic number 14, and उसका जो electronic configuration, that is 1s2, 2s2, 2p6, then 3s2. ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ है. देन 3px1 इलेक्ट्रॉन था, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया. ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3px, अब पेयरिंग यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. पहले हम ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं एंड देन पेयरिंग स्टार्ट होता है. इसलिए यहाँ पे पहले 3px1 आएगा. ठीक है, पहले आएगा 3px1, देन 3py1 एंड देन आएगा 3pz0, क्योंकि इसके पास और इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग. आप एक बार टैली कर लो, 6 + 2 + 2 इज 10, 10 + 2 12, देन 13 एंड 1 is 14. ठीक है, एंड नाउ उसका कंडेंस फॉर्म वगैरह हमें लिखना है, तो कंडेंस फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, नियॉन, उस another remaining configuration is 3s2, it's fully filled, and 3p orbital contain 2 electrons, so we don't have
we don't need to write this 3px1 3py1, we directly write the 3p2. Okay. It is our next element. Now fifth element, that is phosphorus, whose atomic number is 15, whose configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2, then 3px1 carry 1 electron, 3py1 also carry 1 electron, and one more electron is present that goes into 3pz, so 3pz also carry 1 electron. And now we write the condensed form. Here also we write the square bracket neon and another remaining configuration 3s2. Okay, and now 3p3, तो 1 electron one by one we add into the 3p orbital. Okay, ये हो गया phosphorus का. Now next element, that is phosphorus 15 हो गया. Then उसके बाद sulfur, that is 16. एटॉमिक नंबर 16 है सल्फर का. ठीक है, Na, Mg, Al, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड आफ्टरवर्ड क्लोरीन आएगा. ठीक है, 1s2 अगेन कंटिन्यू 2s2 2p6 3s2. नाउ वी नो दैट कि 1 इलेक्ट्रॉन गॉट टू ईच ऑर्बिटल ऑफ सेम सबशेल. 3px1 कैरी 1 इलेक्ट्रॉन, 3py1 ऑल्सो कैरी 1 इलेक्ट्रॉन, एज वेल एज 3pz कैरी 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, दैट मीन्स the next electron goes into the pairing in 3px orbital. यहाँ से pairing start होगा according to Hund's rule of maximum multiplicity. So 3px carry the 2 electrons and 3py1 and 3pz1, मतलब 3py it also carry 1 electron and 3pz carry 1 electron. So total electron becomes 16. ठीक है, and now we write the condensed form. Again we have to write the square bracket neon, then 3s2 and 3p4. ओके, ये हो गया उसका कंडेंस फॉर्म. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज क्लोरीन, हुज एटॉमिक नंबर 17 एंड क्लोरीन हैव अ सिंबल Cl. ओके, तो Na हो गया, Mg एल्यूमिनियम, Na, Mg, Al सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. एंड नाउ वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. अगेन 1s2 फर्स्ट शेल कंप्लीट, 2s2 2p6 सेकेंड शेल कंप्लीट. Now third shell 3s2. अब यहाँ पे 3px also carry 2 electrons. Now 3py also carries 2 electrons because we start the pairing according to Hund's rule. So यहाँ पे फिर से 1 electron add हो जाएगा, तो 2p1 का 2py2 हो जाएगा, but 3pz carry only 1 electron. Okay, so configuration becomes 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 and 3pz1. And now we write the condensed form, that neon, that is noble gas element, it contains 10 electrons. And now again 3s2 and 3p carries the 5 electrons. Okay, now ये हो गया क्लोरीन. Now next element, next element it's a 18, that is argon. ठीक है, 18 argon element है. Na, Mg, Al सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. उसके बाद एर्गॉन, हुज एटॉमिक नंबर 18, 1s2 2s2 2p6 3s2, then 3px2 3py2 and 3pz2. Now in this case in argon 3p also contain total 6 इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स यहाँ पे 3p ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा. ओके, अगर 3p ऑर्बिटल यहाँ पे कम्प्लीटली फिल्ड अगर हो रहा है, ठीक है, 3p अगर कम्प्लीटली फिल्ड है तो इसका मतलब यहाँ पे थर्ड शेल जो है वो भी कंप्लीट होगी, क्योंकि 1s2 फर्स्ट शेल, 2s2 2p6 सेकेंड शेल. 2 फर्स्ट शेल में 2 की कैपेसिटी है तो 2 इलेक्ट्रॉन है. सेकेंड शेल में 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सेकेंड शेल भी कंप्लीट होगी, ऐसी भी कैपेसिटी कंप्लीट हुई. उसके बाद जो थर्ड शेल है 2 + 2 + 2, मतलब 2 1 = 2 2 2 = 4 2 2 = 6, सॉरी 2 3 = 6 एंड 2 4 = 8, मतलब आउटरमोस्ट शेल जो है दैट इज थर्ड शेल, दैट ऑल्सो कंटेन द 8 इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स एर्गॉन की लास्ट वाली शेल जो है वो कंप्लीट है, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है. इसका मतलब एर्गॉन जो है इट्स अ स्टेबल एलिमेंट एंड दैट इज नथिंग बट इट्स अ नोबल गैस एलिमेंट. एर्गॉन क्या है? इट्स अ नोबल
गैस एलिमेंट। आर्गॉन जो है वो नोबल गैस एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर इज 18। नाउ अब यहाँ पे हम जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो क्या रहेगा, नियॉन। अब वैसे भी ये नोबल गैस है तो हम उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर इसके सामने अगर लिखना रहा तो हम नियॉन लिखेंगे, ठीक है, एंड 3s2 एंड 3p6। अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं नियॉन देन 3s2 एंड 3p6 कंप्लीट। अब यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेगा बिकॉज इसके आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो गई है, ठीक है। तो यहाँ तक आर्गॉन तक जो है वो हम नियॉन लिखेंगे। आर्गॉन ये स्टेबल नोबल गैस एलिमेंट है, तो इसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा उसमें हम आर्गॉन को लेंगे, क्योंकि आर्गॉन में थर्ड शेल कम्प्लीटली फिल्ड हुई है, ऑक्टेट कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। इसकी वजह से हम नेक्स्ट एलिमेंट कंसिडर करेंगे, दैट इज 19 जिसका एटॉमिक नंबर है that is potassium, and here we write the electronic configuration 1s2, second orbital 2s2, 2p6, first shell complete, second shell complete, then 3s2. So we don't need to write the 3px2, 3p2, 3pz2 because it is totally fulfilled by 6 electrons. So we write here 3p6. Okay, now it's a 3s2 and 3p6 complete हो गया. Then we know that कि the number of principal quantum number, that is n, it's 3. That means that third shell contain the 3 subshell, that is s, p and d. मतलब it contain the 3 type of orbital, that is s orbital, p orbital and d orbital. So 3s2 3p6 जो है यहाँ पे 3p6 complete हो गया। तो according to subshell यहाँ पे 3d ऑर्बिटल फिलअप होना चाहिए, क्योंकि थर्ड शेल में 3 सबशेल आते हैं, एस सबशेल आता है, ठीक है, 3 सबशेल्स आते हैं। सो यहाँ पे 3 सबशेल्स आएंगे। 3 सबशेल कौन से आएंगे, मतलब n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब वहाँ पे 3 सबशेल्स आएंगे। और 3 सबशेल्स कौन से आएंगे वहाँ पे, n इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब वहाँ पे 3 सबशेल्स आएंगे, ठीक है। और n इज इक्वल टू 3 है, मतलब इट कंटेन 3 सबशेल, एंड 3 सबशेल इज नथिंग बट द s सबशेल, p सबशेल एंड d सबशेल, ठीक है। s सबशेल, p सबशेल एंड d सबशेल, ऐसे 3 सबशेल्स आते हैं। s सबशेल में s ऑर्बिटल, ठीक है, तो यहाँ पे एक 3s ऑर्बिटल रहेगा, p सबशेल में 3p ऑर्बिटल रहेगा और d सबशेल में 3d ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है, 3d ऑर्बिटल रहेगा। और हम s में तो ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए, 3p भी ऑलरेडी फिलअप है। अब 3d के कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की है तो हम उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू रूल और या फिर अकॉर्डिंग टू अबो प्रिंसिपल 3d एंड 4s, इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो अकॉर्डिंग टू रूल 4s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n प्लस एल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4s की जो एनर्जी है वो 4s की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 3d। सो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल्ड इन 4s ऑर्बिटल एंड देन आफ्टर completely filling the 4s orbital, another electron goes into the 3d orbital. So we have to fill the electron first in the 4s orbital because it has a lower energy, and after filling the 4s orbital completely we fill electron in the 3d orbital. Okay, so in that case of potassium we filled 3p6 orbital. Now we have one more electron, so that goes into the 4s, ठीक है, it goes into the 4s orbital rather than in the 3d orbital, मतलब वो 3d ऑर्बिटल में ना एंटर करते हुए डायरेक्टली इट गोज इनटू द 4s ऑर्बिटल, वो 4s ऑर्बिटल में एंटर करता है, ठीक है। और हमें अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कंडेंस फॉर्म, अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है कंडेंस फॉर्म का तो कंडेंस फॉर्म में हम लिखेंगे आर्गॉन बिकॉज इट इज द नियरेस्ट नोबल गैस ऑफ पोटेशियम, आर्गॉन, एंड इट कंटेन टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें 18 तक लिखने की जरूरत नहीं है। बचा जो है दैट इज 4s1, क्योंकि यहाँ तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s2 2s2 2p6, 6 + 2 + 2 10 हो गया, 10 + 6 16 + 2 18 हो गया, मतलब यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन का है, मतलब हमें 18 इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है।
अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट और आर्गन लिख लिया मतलब इट कैरीज 18 इलेक्ट्रॉन एंड रिमेनिंग इज 4s1। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम का। एंड नाउ लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज 10, लास्ट एलिमेंट 10, दैट इज कैल्शियम हुज एटॉमिक नंबर इज 20। अब कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हमें लिखना है तो अगेन हम वहीं से स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। 1s ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट शेल इट कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड शेल स्टार्ट होगी, फर्स्ट शेल कंप्लीटली फिल होगी, सेकेंड शेल में 2 ऑर्बिटल है, एक 2s ऑर्बिटल इट कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन, अनदर 2p ऑर्बिटल दैट कैरीज 6 इलेक्ट्रॉन, देन थर्ड शेल स्टार्ट होगी, थर्ड शेल जो है 3s ऑर्बिटल इट कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देन 3p ऑर्बिटल कैरीज 6 इलेक्ट्रॉन। नाउ one more electron goes we have one more electron that goes into the 4s2 because यहाँ पे अकॉर्डिंग टू शेल यहाँ पे 3d ऑर्बिटल आना चाहिए, बट हमें पता है कि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिलअप होते हैं 4s में, बिकॉज इसकी एनर्जी कम है, एंड देन उसके बाद 3d ऑर्बिटल फिलअप होता है और s की कैपेसिटी 2 की है। अभी पोटेशियम जो हमने देखा था उसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, मतलब उसमें एक और इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली गोज इनटू द 4s2। okay, and now 4s is complete and we total have the 20 electrons, 6 plus 2 plus 2 that is 10, 10 plus 6 16, 17 18 19 and 20। that means यहाँ पे ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल हो गया। अगर हमें कंडेंस फॉर्म में उसका कॉन्फिगरेशन लिखना है तो उसका नियरेस्ट नोबल गैस दैट इज आर्गन, हम वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, एंड बचा हुआ जो ऑर्बिटल है दैट इज 4s2, तो यहाँ पे 4s2 आएगा, दैट इज s कैरीज द 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्बिटल फिलअप करेंगे। ठीक है, 4p ऑर्बिटल। तो यहाँ तक हो गया 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नाउ उसके बाद हमें नेक्स्ट एलिमेंट देखना है। नेक्स्ट एलिमेंट जो है दैट इज स्कैंडियम। नेक्स्ट सीरीज जो है दैट इज स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। ठीक है, तो इनमें 21 जब हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे स्कैंडियम में तो उसमें इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द 3d ऑर्बिटल, एंड when we goes from scandium to titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc, then one electron get added into the 3d orbital, and lastly the 3d zinc that contain total 10 electrons. That means it have completely filled 3d orbital. Okay, so up to zinc we have to study the electronic configuration, but now in this lecture we have studied the element electronic configuration from sodium to calcium, and we also studied the nearest noble gas that is condensed electronic configuration. So सोडियम से लेकर आर्गन तक, मतलब नेक्स्ट नियरेस्ट गैस आने तक हम नियॉन को कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट मीन्स नियॉन कैरीज द 10 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच टाइम, एंड आफ्टर argon also shows the completely filled orbital, and after argon पोटेशियम के केस में हम आर्गन को एज अ नियरेस्ट नोबल गैस कंसिडर करके उसको स्क्वायर ब्रैकेट में कंटिन्यू करेंगे, और उसके नेक्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचा है उस ऑर्बिटल के साथ हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने पोटेशियम में 3p6 तक जो कॉन्फिगरेशन आता है वो आर्गन का आता है, और उसके बाद जो 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है दैट गोज इनटू द 4s ऑर्बिटल। ओके, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, 4s ऑर्बिटल में जाता है, एंड उसके बाद कैल्शियम में 1 मोर इलेक्ट्रॉन एंटर होता है 4s2 में। ठीक है, और यहाँ पे 4s ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया बिकॉज s हैव अ कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो इफ वी गोज to next element that is scandium whose atomic number 21, so 1 electron goes into 3d because we know that the 4s orbital have a lowest energy, so it filled first, and after that according to above principles the next orbital is 3d orbital, so 1 more electron goes into the 3d orbital, and when we continue the series that is scandium, titanium, vanadium, so 1 electron added each time in each element in 3d orbital, so 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5 up to 3d10 तक इलेक्ट्रॉन 1 by 1 हम उस सीरीज में फिलअप करेंगे। सो यहाँ पे कैल्शियम का कॉन्फिगरेशन जो है वो कंडेंस फॉर्म में लिखते तो argon carries 18 electrons, so we write in a square bracket argon, and afterward the 2 electrons that goes into the 4s2 we write next to the square bracket of argon. Okay, so we are complete from 1 to 10, and afterward we are
we are continuing the next series, that is from scandium to zinc, that is from atom number 21 to 30 in next lecture. So thank you.